Very good evening. I am Shilpa and I welcome you all to the NCERT special live phone-in program in collaboration with National Institute of Educational Planning and Administration. Today our topic of discussion is Professional Development Plan for School Heads, and to discuss this topic in our studio we have Dr. Charu Smita Malik, who is the Senior Consultant at National Center for School Leadership. We welcome you, ma'am, in our today's program. Thank you, Shilpa. So let's proceed to understand this very significant topic. Ma'am, first of all, do let us know why professional development of self is important for school heads or for teachers. Yes, Shilpa, as we had seen in the earlier sessions on developing self, we had tried to explain that self-development या व्यावसायिक विकास या व्यक्तिगत विकास ये एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक है, because developing self is a critical component of developing as an effective leader. Right. So that is one of the most important reasons why we discuss about self-development when we are talking about school leadership. And in the second session, we had also discussed certain techniques of developing self, like time management, managing my concerns as a school leader, or engaging in reflective practice. So these techniques also helped in developing self of school leaders. Now, when we are proceeding to this session, we want to understand why professional development is important for school leaders. And professional development will include all the strategies, all the techniques of self-development, like reflection, managing concerns, managing time, communication skills, etc. So we will see the slide here. If you would look at the slide, there are 3 points why PD is important in the context of leadership. So जब हम व्यावसायिक विकास की बात करते हैं तो उससे क्या importance है उसकी और उससे क्या फ़ायदा होता है. पहली चीज़ तो ये है कि what I do as a professional, as a school leader or as a teacher, उसकी recognition होती है, उसकी पहचान बनती है. तो अगर व्यावसायिक विकास की गतिविधियों में हम लगे रहेंगे तो अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में हम सबके सामने एक रोल मॉडल बनके तैयार हो सकते हैं. फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट से कई तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी एक स्कूल लीडर को मिलती हैं, जो कि उसके पर्सनल और प्रोफेशनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तीसरी बात यह है, अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में जूझते रहते हैं एज अ लीडर, एज अ टीचर, जो मुश्किल परिस्थितियां हैं. कई बार स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं. तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके सेल्फ से जुड़ी हुई है, स्वयं से जुड़ी हुई है. तो ये एक सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है. आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्कूल लीडर अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है तो उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट होते हैं. तो PD of school leaders will help in supporting teachers, will help in providing learning opportunities and peer sharing amongst other school heads. So professional development is not a very self-centered activity. It is actually an activity where you are benefiting to the larger community. So I think these are one of the reasons why this topic becomes really important for leadership. Right. So ma'am, that was the importance of PD. Right. But we are using this term professional development again and again in our talk. So what exactly is the meaning of professional development? Correct. So we see the other slide. What is professional development? जिसमें हम इस concept के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि what is professional development? It is, in a broad sense, it is referring to the development of a person in his or her professional role. तो जो भी मेरी व्यावसायिक भूमिका है उसको समझने में और उस व्यावसायिक भूमिकाओं को बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव concept which includes a lot of components which we will discuss later, which actually relates directly with improving the practice, the professional practice of the school leader or the teacher. तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है प्रोफेशनल फॉर अ टीचर? इट इज टीचिंग, राइट. Teaching, or now in the constructivist framework, we say that the teacher is a facilitator. So teacher's facilitation becomes the most important role. Then what is the most important role of a school leader? It is leadership, because that is predominantly what the leader is doing. तो जो टीचिंग या फैसिलिटेशन है या लीडरशिप है, इसी को और बेहतर करने के लिए हम जिन स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं और जिस तरह से हम सब स्वयं को डेवलप करते हैं, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ PD. Right. PD.
Ma'am, three terms. One is professional development, one is career development, and other one is career progression. These create the perplexive mess. So if you could just explain what's the difference between these? Yes. So when we look at the other slide, we have tried to show what PD is and what it is not. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक वन टाइम इनपुट नहीं है कि एक बार हमने ट्रेनिंग करी या किसी वर्कशॉप में हमने प्रतिभाग किया और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया. ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे आप अपने स्वयं को डेवलप कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करियर डेवलपमेंट में तो जो सोच है वो थोड़ी सीमित हो जाती है कि करियर, मान लीजिए आज मैं एक असिस्टेंट की भूमिका में हूँ, कल मैं एसोसिएट की भूमिका में आती हूँ, तो ये सिर्फ करियर प्रोग्रेशन है. राइट. पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इससे कहीं अधिक बड़ा कॉन्सेप्ट है. सो करियर प्रोग्रेशन कैन बी जस्ट अ वर्टिकल प्रोग्रेशन in the formal hierarchy. But professional development in a broad sense is actually referring to all the knowledge, skills and attitudes that one is developing for becoming an effective leader. So like in the slide it says, it is basically acquiring complex sets of knowledge and practical skills, so which is more comprehensive and more broad than career development. Right. And when we're talking about PD, I mean, some people have a very narrow meaning about it. You know, we say that professional development is only about gaining knowledge. Right. It is not. Professional development is also about gaining skills, gaining positive attitudes, which is important for leadership. And as I said earlier, it is not just in-service training, not one-time training. It's a lifelong process. It includes one-time training. Okay. But then there are many other aspects or many other components of PD. Okay. You're right. So ma'am, if we just talk about the characteristics of professional development, Right. so if you could just list down few. Yes. So we've listed down some characteristics of PD. For example, the first one is developing school heads as reflective practitioners. So it only means that PD is not just in an in-service training program that you go and attend an in-service training program, but it is a continuous process whereby the leader is reflecting on one's practice in the school. So how the teacher is teaching, how am I providing the feedback to the teachers, what is the relationship of my school with the community, Right. how are my students learning, are my students happy in my school. So if the school leader, he starts thinking on these questions, Okay. and she tries to reflect on these questions, this becomes part of her habit as a leader. And gradually becoming a reflective practitioner would also help in your PD. Then PD is an important concept here because the school is the laboratory. The school will provide you with so many opportunities Right. and spaces where the school leader can reflect. तो व्यावसायिक विकास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमें स्कूल से बाहर जाकर सीखने की ज़रूरत है या उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप विद्यालय के भीतर भी कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतने लोगों से बातचीत हो रही है, आपस में स्टेक होल्डर्स का आदान प्रदान है. Right. तो इन चीज़ों को लेकर भी आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं. Right. So it's a collaborative process at the end where you are actually contributing to learning by peers also. We will discuss about this later. Right. And I said it's a lifelong process. Right. So ma'am, we are talking about the professional development plan of school heads. So what could be included in that? Right. So when we see the next slide, we have tried to categorize professional development of school heads into 3 categories. Okay. Knowledge, skills and attitudes. So we have listed down certain components of what could be the knowledge areas which a school leader needs to know, what could be the skill areas for the school leader, and what could be the attitudes that the school leader needs to inculcate in herself. ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें आप एंडलेस कंपोनेंट्स जोड़ सकते हैं, पर ये कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स. नॉलेज एरिया को आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक बहुत गहरी समझ होने की आवश्यकता है कि स्कूल लीडरशिप है क्या, स्कूल लीडरशिप के क्या कंपोनेंट्स हैं. अगर मैं स्कूल लीडर बनना चाहती हूँ तो मुझे किन किन बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा.
टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, टीचर्स के साथ काम करना पड़ेगा, वील हैव टू बिल्ड नेटवर्क्स विद द कम्युनिटी. सो अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल लीडरशिप. सेकेंड इज, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल्स हेड टीचर्स आर ऑल्सो टीचिंग इन द क्लासरूम्स. So a head teacher should also have content and pedagogical knowledge. तो एक head teacher वो मुख्य रूप से एक शिक्षक है, उसके बाद वो head teacher है. तो as a head teacher you need to have very thorough knowledge of the content and the pedagogy of different subjects. Only then you can coach your fellow teachers. So that is the another knowledge area that the school leader needs to have. Then we have certain other initiatives. अभी हाल ही में इनफैक्ट काफ़ी समय से ये चल रहा है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन. किस तरह से आर्ट को हम डिफरेंट सब्जेक्ट पेडागोजीज में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. आईसीटी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकेडमिक सुपरविजन क्या है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है. हमारी जो समग्र शिक्षा की जो MHRD की स्कीम चल रही है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको किस तरह से हम अपने विद्यालय में उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं. दैट इज़ अनदर नॉलेज एरिया. स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज़ ऑल्सो बिकम वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न. इसके साथ ही एक स्कूल लीडर को ये जानना ज़रूरी है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं रिलेटेड टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस, एंड ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू डेवलप अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान. सो ये कुछ नॉलेज एरियाज हैं जो हमने लिस्ट किए हैं which are important for a school leader to become effective. Second component हम देखते हैं skills का. तो again as I said कि ये comprehensive list नहीं है, but इसमें कुछ मुख्य skills जो मुख्य कौशल हैं उनको किस तरह से स्कूल लीडर्स आइडेंटिफाई करें और उनको अपने अंदर या अपनी प्रैक्टिस में डेवलप करें, उनको हमने लिस्ट किया है. फॉर एग्जांपल एक स्कूल लीडर इफेक्टिव तभी है जब वो विजन बना सकता है सभी स्टेक होल्डर्स को लेते हुए. कोलैबोरेशन, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल. एकल तो सभी कार्य करते हैं, पर एक टीम बनाकर उन सबको एकजुट करके किस तरह से स्कूल को लीड करना है. कम्युनिकेशन स्किल जो कि संप्रेषण कौशलता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर लीडरशिप. कोचिंग एंड मेंटरिंग टीचर्स सो दैट टीचर्स ऑल्सो improve their teaching practice. Problem solving, building networks and partnership with the community. ICT skills. बहुत सारे हमारे प्रधान अध्यापक हैं जो चाहते हैं कि ICT skills को और जानें और उनके साथ काम करें और ICT को इंटीग्रेट करें अपने स्कूलिंग प्रोसेस में. सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है. इंश्योरिंग आउटकम्स, जो भी क्रियान्वयन कर रहे हैं स्कूल में किसी भी प्लान के तहत, उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या निकले कि नहीं निकले, उनके बारे में सुपरवाइज करना, वो भी एक स्किल है. और आजकल बात हो रही है लर्निंग आउटकम्स की. So that is also an important skill. How do you ensure teaching learning processes in your school which help build learning outcomes of children? And planning and reviewing. So ये कुछ मुख्य कौशल हैं जिनको हमने लिस्ट किया है to understand कि किन skills की आवश्यकता है एक स्कूल लीडर के लिए अगर उसको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है. Third component, which is I think the most important component, is the component of attitudes. And before you just go into the component of attitude, there are the one skill which you mentioned, the coaching and mentoring. Right. So what's the difference between these two? Yes. So there's a very fine difference between coaching and mentoring. Mentoring is a process through which the school leader in the same subject is able to mentor a teacher of the same subject. So for example, the head teacher has been a teacher of mathematics earlier, and even presently also is taking classes for mathematics, and there is another teacher in the school who is also a mathematics teacher. So mentoring is a process by which the school head is able to mentor the teacher in the same subject. But coaching is a very broad skill whereby the head teacher, whoever subject he belongs to, can coach teachers of any subject. So basically both the processes are designed in such a way that the school head supports the teacher in a very critical manner, whereby the teacher is able to reflect on how she is teaching and how can she improve that teaching. So both are basically focused on improving the teaching practice, but with the support and facilitation of the school leader. Right. So the third component, as we said, is the attitude, you know, which is the most important component, जिसको हम कहते हैं अभिवृत्तियाँ. और the right attitude for a school leader देखते हैं क्या है. Taking initiative, self confidence, ये बहुत common है, पर ये मुश्किल है self confidence को
बढ़ाना और उसको मेंटेन रखना, हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक, स्वप्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, प्रोएक्टिव, सपोर्टिव, should believe in innovation, that should be the attitude of the school leader, challenging mental models of self and others. So is the school head able to challenge the prejudices, जो पूर्वाग्रह हैं, स्वयं के पूर्वाग्रह हैं, उनको थ्रू रिफ्लेक्शन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द रीजंस, क्या पूर्वाग्रह सही हैं मेरे, गलत हैं, उनको एग्जामिन करना क्रिटिकली और उनको चेंज करना. सिमिलरली चैलेंजिंग द मेंटल मॉडल्स ऑफ टीचर्स एंड अदर पीपल. टू अदर इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड जैसे आप स्लाइड में देखेंगे है कि वन ऑफ द बिलीव्स दैट एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड एवरी टीचर कैन बिकम बेटर. सो इफ द स्कूल लीडर हैज दैट बिलीफ एंड दैट एटीट्यूड, he or she can really do wonders in the school. And a belief in a fear-free environment in the school. एक भय मुक्त वातावरण बना के रखना, ये भी एक important attitudinal area है for the school leader. So जैसे आपने देखा प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हमने 3 भागों में बांटा है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रिड है स्लाइड में, और इस ग्रिड से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ स्कूल लीडर कि मुझ में कौन से नॉलेज एरियाज हैं जहाँ पे गैप हैं, कौन से स्किल एरियाज हैं जहाँ पे गैप हैं, और कौन से एटीट्यूड्स हैं जो मुझे डेवलप करने की आवश्यकता है. So this and this list, as I said, is not complete. You can add more amongst all the 3 components. So this is an important way to identify मैं as a school leader आज कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है और किन किन चीज़ों को मुझे डेवलप करने की आवश्यकता है. So ma'am, as a part of like professional development, if school heads wants to do their own professional development, then what kind of steps, the process they have to go through? Right. तो इसको स्लाइड नेक्स्ट देखेंगे हम. बिगिनिंग विद द प्रोसेस ऑफ पीडीपी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान. जैसे अभी ये हमने आपको ग्रिड दिखाई, उस ग्रिड में ये नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एक ये तरीका हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का कि वेयर एम आई राइट नाउ एंड वेयर आई वांट टू गो अहेड. देयर कैन बी मेनी अदर टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड्स ऑफ मी एज अ स्कूल लीडर. ये एक तरीका है. तो पहला स्टेप तो इसमें यही है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं एज अ स्कूल लीडर कि कौन से ऐसे एरियाज हैं पीडी के जहाँ पे मुझे और बेहतर करने की आवश्यकता है. दूसरा, आइडेंटिफाइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. अगर मैंने एक बार नीड्स आइडेंटिफाई कर ली तो मैं उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कहाँ जाऊँ जी, और कौन से ऐसे फोरम्स में जाऊँ या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें करूँ जिससे कि मेरा पीडी बिगिन हो सके. राइट. फिर थर्ड स्टेप में यू नीड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन प्लान और डेवलप वन एक्शन प्लान विद टाइमलाइंस. तो कुछ चीज़ें हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो आप डेली भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर ट्राइंग टू स्पीक इन द स्कूल मोर ऑफन, राइट. सो दैट कैन बी वन टेक्निक. या फिर रिफ्लेक्शन है तो आप शाम में स्कूल के बाद आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन में एंगेज कर सकते हैं इन अ प्राइवेट स्पेस. सो ये कुछ टेक्निक्स तो आप रूटीन कर सकते हैं इन अ डेली फैशन और अ वीकली फैशन. और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिड टर्म हो सकती हैं, जैसे आपने ये डेडलाइन बनाई कि अगले 6 महीने में मुझे ये कोर्स करना है, तो वो एक टाइमलाइन हो सकता है. या 1-1.5 साल में मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है. या लॉन्ग टर्म 2 से 3 वर्षों में मुझे इन डेडलाइंस को मीट करना है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल और इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज अ स्कूल लीडर. तो एक बार आपने टाइमलाइंस सेट कर ली इन टर्म्स ऑफ योर नीड्स एंड हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट फुलफिलिंग द नीड्स, देन यू मस्ट अंडरटेक द प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट forums and different means. Then the next step is actually also recording your own progress timely. तो जो मैंने डेडलाइंस या टाइमलाइंस सेट करी हैं, 6 महीने में मुझे मान लीजिए आईसीटी स्किल्स का बेसिक कोर्स कंप्लीट करना है एंड आई वांट टू नो कि हाउ कैन आई यूज आईसीटी इन स्कूलिंग प्रोसेस. सो यू शुड आल्सो रिव्यू योर प्रोग्रेस कि whether you have been able to achieve it or not, you know. Otherwise ये एक it can just remain a dream, but it cannot get implemented. So that these are the basic steps of if you are making a professional development plan. And last में you need to evaluate. अगर कुछ कमी रह गई है तो फिर आप उस process को you can again start.
Right. So, ma'am, that was the part of the process. If I'll just talk about the strategies for leading professional development, what could that be? Right. स्ट्रैटेजीज से बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि हमारे काफ़ी साथी हैं जिन्होंने कुछ प्रश्न भी किए हैं, जैसे रंभा हैं टीजीटी, वो कह रही हैं हाउ डू यू राइट अ पीडीपी। तो जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई है उसमें ये इसका जवाब मिल गया होगा आपको। व्हाट इज़ अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, ये भी एक धारणा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान मुश्किल से अलग नहीं होते हैं, ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। हाँ, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेट प्लान, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली डेवलप कर रहे हैं तो कुछ आपके पर्सनल सेल्फ में भी चेंजेस आ रहे हैं, सो इट्स अ इंटीग्रेटेड थिंग। Then Pushkar ji has asked, how do you determine professional development needs? The answer I gave in the grid. So you can use that grid as an example or as a tool to understand what are your needs for professional development. And what are the professional development opportunities? This Lipika is asking this question. इस पे ये जो आपने अभी सवाल किया है उसका जवाब अब आगे देंगे, हम देखेंगे स्लाइड्स में। Strategies for professional development of school heads. So what we have tried to do is we have tried to differentiate कुछ ऐसी opportunities हैं professional development के लिए जो formal opportunities हैं और संस्थागत हैं, institutionalized हैं, और कुछ ऐसी opportunities हैं professional development की जो informal opportunities हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जब आप देखते हैं फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं जो आपको तरह तरह के इंडक्शन प्रोग्राम्स या इन सर्विस प्रोग्राम्स देती हैं, और क्या आप उसके एक सदस्य बन सकते हैं या आप उन वर्कशॉप्स या प्रोग्राम्स में प्रतिभागिता करके आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं एज अ स्कूल लीडर। तो इनको हम देखेंगे। पहला है इंडक्शन प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप। ये नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के लिए ही बनाया गया है बाय NCSL, जो नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप है, और 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स काफ़ी राज्यों में चल रहा है थ्रू SCRT, CMAT, SISLEP, जो स्टेट लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं। ये कोर्स NCSL द्वारा ही प्रिपेयर किया गया है। ये 1 महीने का कार्यक्रम है और न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल्स के लिए है, स्पेशली एट सेकेंडरी लेवल। So this is one formal opportunity. The second is in-service capacity building programs on school leadership. ये डायट्स में चलती हैं SCRTs के माध्यम से, और इनकी फंडिंग समग्र शिक्षा से होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं। इनके साथ जुड़कर स्कूल हेड्स और प्रिंसिपल्स अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक फॉर्मल अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, pslm.nupa.org, ये इसका URL है। ये सभी प्रधानाध्यापकों के लिए है, जितने भी सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी विद्यालय हैं, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी। सो ये उन सभी हेड टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए है। इनफैक्ट दिस इज ओपन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हेड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी इंटेंसिव 2.5 months program. School heads can register on this program and they can get direct certification through NEPA on the online program. So this is the third important strategy for or a formal opportunity for PD. And the last is school heads के लिए ये आवश्यक है कि वो बार बार वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं स्कूल लीडरशिप पे, उनके साथ जुड़ें। बहुत सारे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं समय समय पर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, और इनफैक्ट अब तो यूनिवर्सिटी सेक्टर भी बहुत इंटरेस्टेड है स्कूल लीडरशिप फील्ड में। तो ये सारी संस्थाएं जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जहाँ पे सब एक साथ मिलते हैं, विचार आदान प्रदान होता है, ये एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनको देखा जाए समय समय पर और इनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ज्वाइन करें स्कूल हेड्स। कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी मैंने लिस्ट डाउन करी हैं जिससे कि PD पॉसिबल है। नेक्स्ट हम आते हैं इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ में जैसे आपसे बोला मैंने कि एक फॉर्मल चैनल है थ्रू विच यू कैन acquire professional development,
पर कभी कभी पूरा साल निकल जाता है और शायद 1 या 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके लिए ना रुकें, इनफॉर्मली अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को शुरू करें और हर दिन कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक जो मैंने बताया है यहाँ पे वो है सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय। तो बहुत सारी ऐसी लीडरशिप पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं और अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट विच लीडर्स कैन रीड एंड दे कैन प्रैक्टिस इट इन देयर स्कूल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा है लाइव स्ट्रीमिंग विद स्कूल लीडर्स। सो जैसे हम लोगों की नीपा की फैकल्टी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है प्रिंसिपल्स के साथ every Friday on Kishore Manch and YouTube channel NCRT official. So they can directly listen to us और इस चर्चा से वो काफी लाभान्वित हो सकते हैं. Even they can ask the question. Even they can ask questions directly with us. So this is an other important informal opportunity for PD of school leaders. तीसरा है they can also search a lot of material that has got generated in India on school leadership. नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप की वेबसाइट पे आके बहुत मटेरियल अवेलेबल है और दूसरी एक वेबसाइट का नाम बता रही हूँ, टेस इंडिया। तो उसका यूआरएल दिया है स्लाइड में। तो टेस इंडिया ने भी काफ़ी मॉड्यूल्स बनाए हैं स्कूल लीडरशिप पे और वीडियोस भी हैं स्कूल्स और क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में, उनको भी देखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर आता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, क्योंकि अब हमारा बहुत जोर है क्वालिटी एजुकेशन पे और फोकस कर रहे हैं हम लगातार कि किस तरह से विद्यालय में लर्निंग आउटकम्स बढ़ें या स्टूडेंट लर्निंग और बेहतर हो। तो आप देखेंगे NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में हजारों की संख्या में पेडागोजिकल और कंटेंट नॉलेज पे वीडियोस अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ई पाठशाला पे भी अवेलेबल है, ई पाठशाला का ऐप भी है, इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन विच यू कैन डाउनलोड एंड सर्च एंड एक्सप्लोर वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जिनमें जाके स्कूल लीडर्स और टीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑफ हाउ टू डेवलप देमसेल्व्स प्रोफेशनली एंड हाउ टू अप्लाई ऑल द लर्निंग्स इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट। एक और बहुत बढ़िया तरीका है फेस टू फेस प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज से जुड़ जाएं। तो स्कूल हेड्स हमको पता है कि क्लस्टर लेवल पे भी मीटिंग्स होती हैं, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग्स होती हैं स्कूल लीडर्स की। तो मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। एक वाकपीठ होता है राजस्थान में, एक शैक्षिक संवाद है मध्य प्रदेश में। ये कुछ 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। हर राज्य में इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे स्कूल हेड्स एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं एंड इन द प्रोसेस डेवलप देमसेल्व्स। They can also become part of online professional learning community. तो जैसे फेस टू फेस में 50 या 25 स्कूल हेड्स साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और अपने स्कूल्स की चैलेंजेस को, समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं, उस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अब इमर्ज हो रहे हैं। इसमें मैंने एक उदाहरण लिया है teachersofbihar.org का। बिहार के शिक्षकों द्वारा ये पहल की गई है और इसमें कम से कम 4000 शिक्षक जुड़ चुके हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से अपने स्कूल में जो भी गतिविधियां हो रही हैं और जो भी वो कुछ नया सीखना चाहते हैं वो शेयर करते हैं। सो दैट कैन बी अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो I request the school leaders to join social media platforms also, like Facebook, and there they can document their work and share with the larger people. So ये कुछ informal opportunities हैं जो available हैं. Again, this is not a comprehensive list. इसमें बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं और हमारे प्रधानाध्यापक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हर राज्य में, एंड हो सकता है कि वो कमेंट्स में बताएं कि उनके द्वारा क्या क्या काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं. एक स्लाइड और देखेंगे. इसके अलावा अगर समय कम है तो स्कूल लीडर्स वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं बेस्ड ऑन स्कूल लीडरशिप और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स दैट आर इंस्पिरेशनल इन नेचर. तो जैसे हमने बात करी थी एटीट्यूड्स की, तो एटीट्यूड्स में एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड है पॉजिटिव आउटलुक. So inspirational video documentaries can be an important method by which you can improve your attitudes, motivational levels, या फिर किताबें पढ़कर. ये कुछ important techniques हैं. उसके अलावा school heads reflect कर सकते हैं. That can be a daily habit.
कम्युनिकेट करें अपने कलीग्स के साथ जो आपके पीयर स्कूल हेड्स हैं, रेगुलर कॉन्वर्जेशंस विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दैट विल हेल्प बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू फॉलो रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन, you can begin the professional development process for your own self. Right. That was wonderful, ma'am. Today we very well understood why professional development plan is important for school heads or for teachers, and also how to achieve it. Thank you so much, ma'am, for guiding us. Till then, take care and keep watching Kishore Manch.